Let us talk about more advanced form of kidney, and this is the mesonephric kidney. So as I told you that all the kidneys are derived from the intermediate mesoderm. So the kidney which is derived from the intermediate part of this intermediate mesoderm is actually the mesonephric kidney. तो मीजोनेफ्रिक किडनी और प्रोनेफ्रिक किडनीज में ये डिफरेंस है कि प्रोनेफ्रिक किडनीज के केस में वी हैड द सेगमेंटल अरेंजमेंट, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो उसके डक्ट्स हैं, जो उसके ट्यूब्यूल्स हैं, दे डिवाइड्स बाय बडिंग एंड ब्रांचिंग, जिस वजह से देयर नंबर इंक्रीजेस. नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उनका जो सेगमेंटल अरेंजमेंट है इट गेट लॉस्ट. तो if we look at the developmental pattern, so here the anterior end which was supposed to form the pronephrons. So if we look at the developmental pattern, so what happens, the anterior part of the body which was mainly involved in formation of pronephrons, it starts to degenerate. So from the region where the pronephrons terminates, there arises mesonephrons. Okay, the tubules of mesonephric kidney are called as the mesonephrons, and they have connection with the gonads. Okay, and the duct which we had till now, which was pronephric duct, it gets replaced by a new duct which is mesonephric duct or Wolffian duct. So the interesting thing here is that the mesonephric duct is also called as the Wolffian duct, and the mesonephrons are also called as the Wolffian body. By the end of the differentiation, all the pronephrons they get degenerated. Okay, so in amniotes, which includes the reptiles, birds and mammals, the mesonephrons is functional only in the embryos. Okay, अगर वो adults में ही functional हो जाती तो फिर मेटानेफ्रिक किडनी का क्या रोल था. तो ये रीज़न क्या है इस चीज़ का कि they are only present in embryos, that I will tell you later. In fishes and amphibians, as I told you that they had the extended mesonephrons, which is also called as the opisthonephrons. And in myxines, like as I told you that mesonephrons, they do not have any segmental arrangement, but the myxinoids, they have the segmental arrangement of this mesonephric kidney, and there this mesonephric kidney is called as the holonephros. So now let us look how this kidney is more advanced than the pronephros. So here what happens, till pronephric kidneys we had the external glomeruli and which required the association of nephrostome, but here we have the internal glomeruli. Our glomeruli are encapsulated by the Bowman's capsule. तो अब इंटरनल ग्लोमेरुलाई का नंबर बढ़ रहा है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई का नंबर कम हो रहा है, तो उसी की वजह से साथ साथ में जो नेफ्रोस्टोम्स हैं देयर नंबर विल आल्सो स्टार्ट टू डिक्रीज. उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, दे विल बी प्रेजेंट इंटरडिस्पर्स्ड, और जो किडनी होगी दैट विल बी मोर कॉम्पैक्ट फ्रॉम द प्रोनेफ्रोस. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द mesonephric kidney, where we have the internal glomeruli and few interdispersed nephrostome. And the mesonephric duct, it helps to take out the urine from the body through the cloaca. Okay, now as I told you that mesonephric kidney is only present in the embryo of amniotes. So why this is the case that they're only present in embryos? So the reason is the inability of mesonephrons to concentrate urine. See, the organisms, मतलब जो इनके एम्ब्रियोस है उस केस में क्या होता है, वी डू नॉट हैव द डेवलप्ड रिनल मेडुला. अगर हमने अपने मैमल्स की या ह्यूमंस की फिजियोलॉजी पढ़ी है तो उसमें हमने पढ़ा है दैट किडनी कंटेन्स रिनल कॉर्टेक्स एंड रिनल मेडुला. तो रिनल मेडुला में क्या होता है, वी हैव द लूप्स ऑफ हेनले. लूप्स ऑफ हेनले के साथ साथ ही वी हैव कनेक्शन ऑफ कैपिलरीज लाइक वासा रेक्टा. तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले की में जो काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है उस वजह से वी हैव द पावर टू कंसनट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन. बट जो एम्ब्रियोस है मेसोनेफ्रिक किडनी वाले, उनके केस में रीनल मेडुला ही नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है या फिर जो लूप ऑफ हेनले वगैरह जो भी होता था वो सब नहीं हो पाएगा. तो इस वजह से क्या होगा, वी रिक्वायर एन मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किडनी विच इज़ मेटानेफ्रिक किडनी दैट इज प्रेजेंट इन द एडल्ट ऑफ एमनियोट्स. ओके, सो एम्ब्रियोस के केस में इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज दे हैव द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग देम, तो जिसकी वजह से उनके अंदर पानी की कोई कमी होती ही नहीं है. So if we talk about the most definitive kidney of a vertebrate, then this kidney is the metanephric kidney. अब मेटानेफ्रिक किडनी में क्या होता है, अगर किडनी को मेटानेफ्रिक बनना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोनेफ्रिक वाला पार्ट है और जो मेसोनेफ्रिक वाला पार्ट है वो दोनों डीजेनरेट हो जाए, ताकि जो पूरी एंटायर किडनी है दैट इज़ ओनली मेटानेफ्रिक. तो लेकिन इस केस में क्या होता है, मेसोनेफ्रिक किडनी का वो पार्ट जो कि गोनैड्स के साथ एक्चुअली में एसोसिएटेड है
उस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट मेसोनेफ्रॉस का डीजेनरेट हो जाता है। दिस इज़ द केस ऑफ मेल्स, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, जो मेसोनेफ्रिक किडनी गोनेट्स के साथ एसोसिएशन दे रही है, दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स द यूरिनोजेनाइटल डक्ट या वासा फ्रेंच या वासा डिफरेंस या फिर एपिडिडाइमस, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है इट कैन फॉर्म। बट इन फीमेल्स के केस में क्या होता है, जो किडनी है उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कोई भी एसोसिएशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो पूरा मेसोनेफ्रॉस जो है इट स्टार्ट्स टू डीजेनरेट। इन फैक्ट फीमेल्स में क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ म्यूलेरियन डक्ट, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, जो कि सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कनेक्शन विद आवर ovaries. Okay, so the most interesting feature about the metanephrinic kidney is their dual origin nature. जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रोनेफ्रिक और मेसोनेफ्रिक्स के केस में दैट दे आर डिराइव फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेकिन मेटानेफ्रिक किडनीज के केस में क्या होता है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म एज वेल एज मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। अब मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम क्या है, लेट अस लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये हमारी मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है, मतलब डक्ट है। जब मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो क्लोएका में जाती है, तो उस पार्ट से जहाँ पे वो क्लोएका में एंट्री कर रही है, उसी पार्ट से क्या होता है, वहाँ पे एक और डक्ट ओरिजिनेट होती है। एक तरह से वी कैन से इट इज़ अ यू टर्न ऑफ मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, तो वो ओरिजिनेट होती है। उसके बाद एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी वी हैव अ कंडेंस्ड इंटरमीडिएट मेसोडर्म, जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। इसको अगर और अच्छे से समझना है, सो लेट अस फर्स्ट लुक एट दिस वीडियो। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो हमारे रेड है जो नीचे आ रहा है, दिस इज आवर मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, और जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज क्लोएका। तो जहाँ से वो एंटर कर रही है क्लोएका में, उसी पार्ट से एक और डक्ट ओरिजिनेट हो रही है, इस डक्ट को हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। और पोस्टीरियर पार्ट में वी ऑल्सो हैव अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, विच इज एक्चुअली अ कंडेंस्ड इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ठीक है, तो ये इसके अंदर जाएगी, इट विल फॉर्म एसोसिएशन, और क्या होगा, लाइक दिस इज ऑल लेबलिंग। अंदर जाने के बाद क्या होगा, जो रेड पोर्शन है वो तो हमारा क्या है, ब्लास्टिमा, और जो ग्रे वाला पोर्शन है वो क्या है, वो डक्ट जो कि यूटर्न लेके आ रही थी अंदर। तो ये जो ग्रे वाला पोर्शन है इट विल फॉर्म ऑल द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, एंड द रेड पोर्शन विल फॉर्म द कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट ऑफ द किडनीज। Like you can see here in this diagram, the gray part is differentiating into the calyx collecting tubules, major calyx, minor calyx, and the red part will form the renal cortex or the medulla. Okay, now we can have one question in our mind कि अगर किडनीज का origin या फिर जो भी डिफ्रेंसिएशन है वो पोस्टीरियर पार्ट में हो रहा है, then why do we have the kidney in the retroperitoneal cavity of the body? So इसका आंसर ये है that during the development of an organism there is ascending of gonads and descending of the kidneys. जो gonads है वो नीचे की साइड आ जाते हैं, और जो kidneys है वो ऊपर की साइड ascend कर जाती हैं। इस वजह से you might have studied about the case crypt orchidism, जिसमें क्या होता है, जो testes है they remains in the abdominal cavity, क्योंकि वो descend down नहीं कर पाती है। ओके, तो अगर एक नटशेल में एमनियोट्स के केस की बात करें तो वी नो दैट देयर इज अ प्रोनेफ्रोस जो कि कन्वर्ट होगी मेसोनेफ्रोस और फिर मेटानेफ्रोस, और साथ ही जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है वोल्फियन डक्ट इट विल कन्वर्ट इनटू मेटानेफ्रिक डक्ट। अब मेटानेफ्रिक डक्ट जो है उसको हम यूरेटर भी कह सकते हैं। अगर फीमेल्स के केस में स्पेशली बात करें तो इट शुड बी कॉल्ड एज यूरेटर, और मेल्स के केस में इट कैन बी कॉल्ड एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि उसका एसोसिएशन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ भी होगा और यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ भी होगा। ठीक है, अब क्या होता है, पूरा का पूरा इसमें जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पूरा का पूरा कन्वर्शन नहीं होता, वी स्टिल हैव सर्टेन रेमिनेंट्स ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट और द मेसोनेफ्रोस। तो मेल्स के केस में दे फॉर्म्स द स्पर्म डक्ट जो कि स्पर्मेटोजोआ की जो पैसेज है पूरा वो कराती है। फीमेल्स के केस में भी जो पार्ट रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज द गार्डनर्स डक्ट, एक्चुअली इट इज़ अ वेस्टिजियल पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द मेसेंट्री ऑफ द ओविडक्ट्स। ओके, सो as I told you कि जो amniotes हैं they have the mesonephric kidney in the embryonic stage. In the adult stage they have the metanephric kidney, but still in certain reptiles, monotremes and marsupials, what happens when they take birth, the kidney that is functional in their body is still mesonephric, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो मेटानेफ्रिक किडनी है उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है। तो वंस द डेवलपमेंट गेट completed up,
तो मेसोनेफ्रिक किडनी है, इट स्टार्ट्स टू डिग्रेड and the metanephric kidney forms the functional part. So if we talk about the reptiles, then you can see here this dark brown color structure. This is the kidney of the reptiles which has the posterior portion, क्योंकि वो मेटानेफ्रिक है और मेटानेफ्रिक जो है वो posterior part में बनती है. So it has the posterior portion, बहुत छोटी compact और lobulated structure होता है. And जो मेटानेफ्रिक tubules of reptiles, they do not have the loop of Henle. अब लूप ऑफ हैंडले नहीं है तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म कैसे होगा? तो दैट्स वाई द रेप्टाइल्स दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द कंसनट्रेटेड यूरिन, बट स्टिल दे कैन फॉर्म द कंसनट्रेटेड यूरिन बिकॉज ऑफ द क्लोएका. क्लोएका में क्या होता है, थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी में पानी की कमी आ गई या जो भी है तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्लोमेरुला होती है रेप्टाइल्स के केस में, इट इज़ अ स्मॉल इन साइज. इसका साइज स्मॉल क्यों है, दैट आई विल टेल यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स. सो इफ वी टॉक अबाउट द एव्स के केस में भी क्या होता है, दे डू नॉट हैव लूप ऑफ हैंडले बट दे हैव अ सेगमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू लूप ऑफ हैंडले. इन फैक्ट इन एंटायर एनिमल किंगडम only the mammals and the aves, these are two organisms which have the capacity to concentrate their urine. तो एव्स की जो कैपेसिटी है दैट इज़ बेटर देन रेप्टाइल्स बट स्टिल इट इज़ लेस देन द मैमल्स. तो जो एव्स हैं उनके केस में क्या होता है, उनका जो रीएब्सॉर्प्शन है वो इस सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, और दे कैन ऑल्सो हैव द कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद द क्लोएका और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू भी. तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बर्ड्स के केस में इट इज़ मोस्टली एब्सेंट एक्सेप्ट द ऑस्ट्रिच. एब्सेंट होता है, इट इज़ बेसिकली अ फ्लाइट अडेप्टेशन. ओके और जो इनका दोनों के केस में क्या होता है, जो एक्सक्रीशन है दैट इज़ बेसिकली ऑफ यूरिक एसिड. तो मैमल्स के केस में वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मैमलियन किडनी. दे हैव द रिनाल कॉर्टेक्स, रिनाल मेडुला है, लूप ऑफ हैंले है, सब कुछ है, वासा रेक्टा भी है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है दैट इज़ डिफरेंट एंड हाईली डेवलप्ड फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट ग्रुप्स. ओके सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. You can have a look of this. So if we look at the trends in nephrons, like अभी मैंने reptiles के केस में बताया था, they have corpuscle of reduced size. तो किस ऑर्गेनिज्म में बड़े साइज का होगा, किस ऑर्गेनिज्म में छोटा होगा, किस ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है. तो उससे पहले let us look at this diagram. Suppose we have the organism which is inhabiting fresh water. अब फ्रेश वाटर के केस में क्या होता है, जो सराउंडिंग मीडियम है दे हैव लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट. तो लो कंसनट्रेशन है तो इस वजह से जो सराउंडिंग मीडियम है दैट विल बी हाइपोटोनिक. तो वाटर क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम लो सॉलिड कंसनट्रेशन टू हाई सॉलिड कंसनट्रेशन. तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहा है या फिर जो फिशेज रह रही हैं उनको डर लगेगा कि उनकी बॉडी में कहीं ओवर डाइल्यूशन ना हो जाए, क्योंकि पानी तो अंदर जाता जा रहा है. तो ऐसे केस में उस ओवर डाइल्यूशन को बचाने के लिए दे ट्राइज टू बिकम हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक होने की वजह से क्या करेंगी, वो अपनी बॉडी से जो पानी है उसको निकालना चाहेंगी. तो ऐसे फिशेस के केस में क्या होगा, दे वांट देयर रिनल कॉर्पसल टू बी ऑफ लार्ज साइज हो ताकि जो उनका वाटर आउटपुट है या फिल्ट्रेट आउटपुट है वो ज़्यादा हो. ओके इफ वी लुक एट द केस ऑफ सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट वाटर में क्या होगा, जो सराउंडिंग मीडियम है इट हैव हायर सॉलिड कंसनट्रेशन और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सॉलिड कंसनट्रेशन लो है. तो बेसिकली नॉर्मली क्या होगा, जो पानी है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से बाहर आएगा. ठीक है, तो ऐसे केस में ऑर्गेनिज्म को डर लगेगा कि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए. सो दे विल ट्राई टू बिकम हाइपोटोनिक एंड दे विल ट्राई टू टेक द वाटर इनसाइड देयर बॉडी. ठीक है, तो इन चीज़ पे डिपेंड करता है कि रिनल कॉर्पसल का साइज कैसा होगा. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर फिशेज या फिर एम्फीबियंस, तो वो चाहेंगे दे हैव द हाई वाटर आउटपुट. जैसा कि मैंने उस डायग्राम से बताया था, हाई वाटर आउटपुट हो यानी कि दे मस्ट हैव द रिनल कॉर्पसल ऑफ गुड साइज. अगर हम बात करें सॉल्ट वाटर के केस में, जिसमें हमें चाहिए दैट द वाटर आउटपुट मस्ट बी लो, तो उस केस में क्या होगा, कॉर्पसल साइज विल बी स्मॉल और इट विल बी एब्सेंट. तो अब पानी का आउटपुट तो हमने बचा लिया, बट स्टिल देयर आर सर्टेन सॉल्यूट्स और कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं विच नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड. तो उस केस में क्या होता है, वी हैव special cells on the gill membranes and the rectal glands which are responsible for the excretion of such type of solutes. और सिमिलरली जैसे रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है, वो लोग जो होते हैं ड्राई हैबिटेट मतलब या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, बट स्टिल दे डू नॉट हैव एनी कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म. तो उनको चाहिए होगा कि जो फिल्ट्रेट है उसमें से जितना ज़्यादा पानी हो वो उनकी बॉडी में रिटेन रहे. दे वॉन्ट more water to be retained in their body.
तो ऐसे में वो चाहेंगे कि उनका कॉर्पसल का साइज़ छोटा हो ताकि वाटर आउटपुट ही ज़्यादा ना हो, तो इसकी वजह से उनके केस में भी जो कॉर्पसल है वो छोटा होता है या फिर इंटायरली एब्सेंट होता है। तो ग्लोमेरुलाई ऑफ लार्ज साइज, इट इज़ द केस ऑफ मैमल्स। मैमल्स के केस में जो पूरा है वो मैकेनिज्म ही अलग है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैंडलेस, वी हैव सर्टेन कॉम्प्लेक्स coordination which helps in the formation of concentrated as well as the dilute urine. So if we talk about the trends in urinary bladder, the urinary bladder actually is present in all vertebrates except agnathons, snakes, crocodiles, lizards and birds. तो birds में भी ostrich में है, ostrich ऐसी bird है जिसमें वो present होता है urinary bladder. तो basically जो vertebrate groups हैं, we have three types of bladders: tubal bladder, cloacal bladder and the allantoic bladder. तो ट्यूबल ब्लैडर जो है वो फिशेस के केस में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ बेसिकली द टर्मिनल एनलार्जमेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट। जो हमारी मेसोनेफ्रिक डक्ट थी उसका जो टर्मिनल है वो एनलार्ज हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज प्रेजेंट इन फिशेस। इफ यू टॉक अबाउट द एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, जो हमारी यूरिनरी डक्ट है, जो नाइट्रिक डक्ट है, फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट है, वो सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोएका में, and from some distance away to their opening in the cloaca we have the formation of this urinary bladder. तो इस वजह से इसको हम कहते हैं cloacal bladder, क्योंकि ये separately open होता है in the cloaca. Cloaca, as we know, cloaca has the common opening for the urinary tract, for the genital tract as well as for the alimentary tract. तो जो थर्ड मोस्ट एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो ब्लैडर है दैट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द एलेंटॉइक ब्लैडर। तो एलेंटॉइक ब्लैडर के केस में क्या होता है, बेसिकली अगर हम अपने एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो जो भी एमनियोट्स हैं उनकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है तो उसमें जो एलेंटॉइस होती है, सो जो एलेंटॉइस है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ड्यूरिंग आवर फीटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. So if this is the umbilicus, then the tube which is moving down toward the posterior side of body towards the urinary bladder, it is actually the lumen of the allantois. So the lumen of allantois is in continuation with the lumen of urinary bladder, but at later stages of development what happens, this lumen of allantois, it gets filled with a thick fibrous called as the urencus. तो urencus आने की वजह से क्या होता है, जो अम्बिलिकस का एसोसिएशन था विद द यूरिनरी ब्लैडर, या फिर हम कह सकते हैं जो एलेंटॉइस के ल्यूमन का एसोसिएशन था विद द ल्यूमन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वो एसोसिएशन हिंडर्ड हो जाता है. सो फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस कॉर्ड वी हैव द सेपरेट डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर का डेवलपमेंट में क्या होता है कि वी हैव द सेपरेट ओपनिंग ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट एज वेल एज वी हैव द यूरेट्रिक बड जो कि आगे जाके यूरेटर बनाती है. तो द caudal portion of the mesonephric duct, ये वाला जो पोर्शन है, इट स्टार्ट्स टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होने लग जाती है, नीचे आने लग जाती है, तो दिस फॉर्म्स अ ट्राइगोन स्ट्रक्चर. तो जो ट्राइगोन है दैट इज मेसोडर्मल, लेकिन हमें पता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो ऑरिजिन है दैट इज एंडोडर्मल. तो लेटर स्टेजेस में क्या होता है, दिस मेसोडर्म इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द एंडोडर्मिक एपिथेलियम. So this was all about the vertebrates kidney. Hope you like, and please like and subscribe this